हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार. Today we will discuss about case taking in general. What is case taking? What is its important? Why case taking is important in homeopathy practice? Parts of case taking, importance of case taking, what is medico-legal importance of case taking, and how it helps in prescription and follow-ups. So first we see definition. What is definition of case taking? Case taking is process of individualizing examination of a case of disease. Case taking is the process of collecting all the facts about the patient using various tools like observation, perception, history taking given by the patient, attendants, clinical examination and pathological findings. In order to find a remedy for the patient, using our knowledge of homeopathic materia medica, organon of medicine and repertory. So case taking is process of individualization. हम किसी पेशेंट को, किसी केस को इंडिविजुअलाइज करते हैं. इंडिविजुअलाइजेशन, एकीकरण. अगर 5 पेशेंट है, पांचों को बुखार है, तो पांचों को होम्योपैथी में हम एक दवा नहीं दे सकते. 5 persons are not equal. Some has aggravation in morning, some has aggravation in evening, some has aggravation of cold water, some has aggravation from warm water. So these criteria differs one person to other person. So here process of individualization. So process of individualization is done by proper case taking. केस टेकिंग में हम पेशेंट के द्वारा बताए गए लक्षण और सिम्टम्स को नोट डाउन करते हैं. ऑब्जर्वेशंस, वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, क्या उसका बिहेवियर, व्यवहार है. परसेप्शन, उसके रिलेटिव, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर के द्वारा बताए गए लक्षण. क्लिनिकल फाइंडिंग्स और पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स बाय एक्सरे, ब्लड एग्जामिनेशन, यूरिन, स्टूल एग्जामिनेशन और अदर पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स. इन सभी को एक साथ करके अपनी जानकारी, नॉलेज जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन और रेपर्टरी के द्वारा हम प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम एक दवा पेशेंट को देते हैं. वी प्रेस्क्राइब ए मेडिसिन टू ए पेशेंट फॉर रिलीफ द कंप्लेन. सो दिस इज होल प्रोसेस इज कॉल्ड case taking. In organon of medicine, case taking is described in different aphorism. So case taking described in aphorism 83 to 104. So organon of medicine divided into 2 parts, theoretical and practical. Theoretical part contains aphorism 1 to 70 and 71 to 104 is
case taking part. Case taking further divided into two parts: knowledge of disease and case taking proper. Case taking in Organon of Medicine discussed in aphorism 72 to 104. Each aphorism contains individual aspects or theory or instruction about case taking. In aphorism 71, Dr. Hahnemann says, in the operation of curing is comprised in the 3 points, of which first is the case taking. 71 is the practical part of the Organon of Medicine, and aphorism 1 to 70 is the theoretical part or aspect of the Organon of Medicine. Case taking divided into two parts, means 72 to 104 aphorism divided into two parts: knowledge of the disease and case taking proper. Knowledge of the disease described in Organon of Medicine, aphorism 72 to 82. Knowledge of disease is divided into two parts: acute disease and chronic disease. Acute disease described in aphorism 72 and 73, whereas chronic disease described in 74 to 82 aphorism. 72 and 73 aphorism divided into two parts: individual disease, sporadic disease and epidemic disease. So, individual disease described in 72 aphorism, sporadic and epidemic disease described in aphorism 73. Sporadic diseases of two types, meteoric and telluric, and epidemic disease is of two types, recurrent and non-recurrent. Aphorism 72 to 74 to 82, which describe about the chronic disease, it divided into four parts. Number one is artificial disease, that is aphorism 74 to 76. Pseudo disease is 77, true disease in 78 to 81, and conclusion is described in aphorism 82. Artificial disease, aphorism 74 to 76, is further divided into two parts: curable and non-curable disease. True disease is divided into three parts: sora, syphilis, psychosis, in which syphilis mentioned or described in 78 aphorism, psychosis 79, and sora 80 and 81 aphorism. In this way, each aphorism of Organon of Medicine contains particular description about chronic disease. So, chronic disease described in aphorism 74 to 82. Case taking proper, which is second part of chapter case taking. First part is disease of the knowledge and second part is case taking proper. So, case taking proper is described in aphorism 83 to 104. This
chapter or case taking proper further divided into following parts. Number 1 is general direction 83 to 93 aphorism, chronic cases 94 to 98, acute disease 99 to 102, and next duty of physician is 103 and 100. So first is general direction of case taking, which is described in aphorism 83 to 93. This topic divided into two parts. Patient coming directly 83 to 90 and patient from other physician is aphorism 91 to 93. Chronic case 94 to 98 is divided into two parts. Patient coming directly 94 to 97 and patient reported by others is aphorism 98. So patient coming directly is divided into four parts. General direction 94, hypochondriac patient 96, indolent patient 97, and circumstantially and lesser accessory symptoms 95. 94, 95, 96 and 97 aphorism. Patient coming directly. General direction, circumstantially and lesser accessory symptoms, hypochondriac patient and indolent patient. Next is acute disease, which is described in aphorism 99 to 104. So acute disease is of two types, individual and sporadic and epidemic. So individual acute disease is in aphorism 99, sporadic and epidemic is 100 to 102, 100 से 102. In aphorism 100, consideration unknown one, 100 aphorism, characteristics portrayed behind 101, and abstract obtained from several patients is aphorism 102. Next duty of physician aphorism 103 and aphorism 104. Aphorism 103 contains SORA must be investigated and 104 picture of disease recording. So this is the classification and division of case taking according to Organon of Medicine. After this, topic is ground plan of case taking. What is ground plan? किसी भी काम का एक मूलभूत योजना प्लान होता है, आकार होता है, उसकी थिंकिंग होती है. सो ग्राउंड प्लान ऑफ केस टेकिंग. ग्राउंड प्लान ऑफ केस टेकिंग कंटेन्स definition of case taking aphorism 83, definition of case taking is 83, required
by a physician for tracing the picture of a disease is freedom from prejudice, freedom from prejudice। ऐसा नहीं कि पेशेंट आवे और दर्द है तो हम दर्द के दवा के बारे में ही सोचे, दूसरा ना सोचे। साउंड सेंस, सही जानकारी होनी चाहिए। अटेंशन इन ऑब्जर्वेशन, पेशेंट के एक्शन, स्पीच, उसके मोड ऑफ पोस्चर, सिटिंग, वॉकिंग, ये हमें अटेंशन पूर्वक देखना चाहिए। नहीं तो पेशेंट कह रहा है कि हमें भूख लगा है और मैं सुन रहा हूँ कि हमें प्यास लगा है, तो सुनने में जहाँ गलती हुई टोटल प्रोसेस ही गलत हो जाएगा। फेथफुली रिकॉर्ड, विश्वास पूर्वक, पेशेंट जो कह रहा है उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। अगर डाउट है तो फिर उसके बाद में उस पॉइंट को, उस सिम्टम्स का हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कुछ कंडीशन में पेशेंट झूठ बोलता है, जैसे अगर हम पूछे कि आप कंजूस हो तो कोई नहीं कहेगा कि हम कंजूस हैं। वो कंजूस है कैसे? समय का कंजूस है, पैसे का कंजूस है, खाने पीने का कंजूस है, कपड़े का कंजूस है, कैसा है? ये जब हम लास्ट में वेरीफाई करेंगे उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी इनकम, उसके खर्चे के बारे में अगर, तब ये मालूम होगा। फर्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन हम पूछते हैं तो वो नहीं बताएगा। दूसरा, उसकी आमदनी के अनुसार उसके खर्चे, उसके पहनावे, उसके द्वारा उपयोग किए गए वस्तु या सामान के आधार पर हम कर सकते हैं। एफोरिज्म 84 इज हाउ टू बिगन ए केस टेकिंग। केस टेकिंग हम कैसे शुरू करें, यह भी एक तकनीक है और ये प्रत्येक फिजिशियन के द्वारा अलग अलग अपनाया जाता है। आप 2-3 सिम्टम पूछ करके दवा दे देते हैं, 3 घंटे की केस टेकिंग करते हैं। केस टेकिंग में उसके चीफ कंप्लेन क्या है, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं, ये डिपेंड करता है ये उस फिजिशियन पर जिनके पास ये केस आया है। एफोरिज्म 85 हाउ टू अरेंज द रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड है उसका अरेंज हम कैसे करें, कैसे लिखें। इसके लिए राइट डाउन ईच स्टेटमेंट इन ए सेपरेट सेंटेंस वन बिलो द अदर। एक सिम्टम्स या लक्षण के बाद दूसरा लिखें और उसमें कुछ गैप, जगह देते जाएं, जिससे कि अगर बाद में वो अगर और कुछ पूछता है, बोलता है, तो फिर हम उसे वहाँ पर लिख सकते हैं। आस्क मोर डिटेल क्वेश्चन टू कंप्लीट द सिम्टम्स, दैट इज लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज, कन्कोमिटेंट। अगर कोई पेशेंट कहता है कि हमें पैर में दर्द होता है और दर्द चलने पर बढ़ता है, तो पेन इन लेग उसका एक लक्षण मिल गया कि इसका एग्रावेशन जो है, एग्रावेट फ्रॉम मोशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट मोशन और कंटिन्यूड मोशन। अगर उसके साथ अगर आप 1 किलोमीटर तक पैदल जाएं बात करते हुए और फिर लौट के आए और उसके बाद भी अगर उसे दर्द की फीलिंग नहीं हो रही है, मीन्स पेशेंट सफर्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल पेन और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। So ask more detailed question to complete the symptoms, location, sensation, modalities and concomitant। फर्स्ट टाइम आप उसे ऐसा केस टेकिंग शुरू न कर दें कि फिर दोबारे आपके पास न आवे, ऐसा भी कभी कभी होता है। In aphorism 92, conjoint malady, 93, obvious cause may be present in acute and a chronic disease
विच इज़ टू बी एसर्टेन। अगर बीमारी एक्यूट हो या क्रोनिक हो, लेकिन उसके कारण क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए या करना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, पेशेंट का इतिहास, उस बीमारी से संबंधित। 95 केयरफुल अटेंशन टू माइन्यूट पार्टिकुलर्स बाय इन्वेस्टिगेटिंग सर्कमस्टेंशियलिटीज। केयरफुल अटेंशन टू माइन्यूट पार्टिकुलर्स, छोटे से छोटे बात को भी हमें केयरफुली समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। हो सकता है कि पेशेंट के लिए ये छोटा है, लेकिन मेरे लिए ये काम का हो। 96 एफोरिज्म डील्स अबाउट हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट। ऐसा पेशेंट जो 30% को 80% बढ़ा के कहता हो, हाइपर सेंसिटिव पेशेंट। 97 इंडोलेंट पेशेंट। 98 इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रू, कंप्लीट एंड इट्स पिकुलियरिटीज इन ए क्रोनिक केस। क्रोनिक केस में सही और पूर्ण जांच जरूरी है। 99 एफोरिज्म केस टेकिंग ऑफ द एक्यूट डिजीजेज आर इजियर इंडिविजुअलाइजेशन। एक्यूट डिजीज में केस टेकिंग करना आसान है, लेकिन अगर प्रोसेस सही नहीं हुआ तो 100% फेल भी हो सकता है। एक्यूट डिजीज में 1, 2 या 3 सिम्टम्स पूछते हैं, दवा दे देते हैं। पेशेंट का एक्सप्लेनेशन और डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन अगर सही नहीं हुआ, 100% चांसेज है इसमें फेलियर के। अगर एक केस न्यूमोनिया का आता है, पेशेंट कहता है कि सांस लेने में दिक्कत है, अगर हम उसका अस्कल्टेशन नहीं करते हैं और साधारण सर्दी खांसी समझ करके दवा देके कहते हैं कि 4 दिन के बाद आना, अगर केस न्यूमोनिया का है, बच्चा है, तो 8 से 10 घंटे में या मैक्सिमम 12 से 24 घंटे में अगर ठीक नहीं हुआ तो 2 रास्ते आएंगे। या तो पेशेंट हमारे यहाँ से दूसरे डॉक्टर के यहाँ चला जाएगा, या दूसरा रास्ता मतलब उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। सो बी केयरफुल, बी कॉन्शियस इन ट्रीटिंग एक्यूट केसेस which is fatal in nature. In 101, obtain the complete picture of an epidemic disease. 102, collective disease, find out a remedy on the basis of a special symptoms. 103, anti-miasmatic remedy. So what is anti-miasmatic remedy and importance and use of anti-miasmatic remedy we will discuss in topic anti-miasmatic remedy or in second prescription. लेकिन यहाँ मैं बता दूँ, एंटी-माइजमेटिक रेमेडी एक प्रेस्क्रिप्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ करंट सफरिंग और लोकल सिम्टम्स। अगर किसी को बार बार पैर में दर्द हो रहा है, स्पेशली इन काफ मसल विच इज एग्रावेटेड इन नाइट, रिलीव बाय वार्म एप्लीकेशन, अगर हम उसे मैगफॉस बायोकेमिक या पोटेंसी में देते हैं तो टेम्पररी रिलीफ होता है, और कलकेरिया फॉस देते हैं तो। लेकिन ये बार बार अगर हो रहा है, उसी केस को अगर हम मर्कसोल या लैकेसिस या सिफिलिनम, इस 3 में से कोई एक मेडिसिन देते हैं, जिसके बाद रिकरेंस नहीं होता है, पेशेंट ठीक हो जाता है, सो दिस मेडिसिन
is anti-miasmatic for this case. Dr. Hahnemann says the operation of curing is comprised in 3 points, of which first is case taking. A well taken case is half cure. The physician should know his patient spiritually, emotionally, mentally, physically and socially. According to Dr. Hahnemann, operations of curing, क्योर की प्रक्रिया में 3 पार्ट या 3 बिंदु होते हैं, जिसमें पहला है केस टेकिंग। केस टेकिंग अगर आपकी सही है तो डिजीज डायग्नोसिस भी सही होगी, प्रोग्नोसिस सही होगा और मैनेजमेंट सही होगा। अगर मैनेजमेंट सही है तो भी पेशेंट आधा ठीक हो जाएगा, हाफ क्योर। द फिजिशियन शुड नो हिज पेशेंट स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड सोशली। स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल। शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल, ये सभी प्रकार से एक फिजिशियन को एक पेशेंट की स्थिति को जाननी चाहिए या देखनी चाहिए। इन केस टेकिंग फिजिशियन शुड हैव 2 ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1 इज डायग्नोसिस, in case taking a physician should have 2 objectives. Number 1 is diagnosis and number 2 is individualization. Individualization और आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट को पहचानना कि इसकी क्या समस्या है। डायग्नोसिस एंड इंडिविजुअलाइजेशन। First requisite of case taking is to be note down the case in format. The recording is important for case taking format। मार्केट में प्रिंटेड भी मिलते हैं, आप अपने प्रयोग के अनुसार भी केस टेकिंग फॉर्मेट बना सकते हैं। केस टेकिंग फॉर्मेट को ये नहीं कह सकता है कि ये केस टेकिंग फॉर्मेट इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है। दिस डिपेंड्स अपॉन फिजिशियन हिमसेल्फ, वो किस प्रकार के केसेस देखते हैं और कैसे लिखते हैं। सो सम वेरिएशन बिटवीन one case taking format to other case taking format is possible. The recording is important for first prescription, follow-ups। जब हम फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन, जो फर्स्ट बार मेडिसिन देते हैं, तो प्रेस्क्रिप्शन में हम पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, रिलीजन, एड्रेस लिखते हैं, पल्स, बॉडी वेट, ब्लड प्रेशर और मेन कंप्लेन भी प्रेस्क्रिप्शन पर लिखते हैं। उसके बाद मेडिसिन लिखते हैं। कुछ डॉक्टर मेडिसिन का नाम नहीं लिखते हैं या तो कोडवर्ड लिखते हैं और उसका केस रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। मेडिसिन का नाम न लिखने का 2 कारण है। एक तो कि डॉक्टर साहब को डर लगता है कि पेशेंट दूसरे डॉक्टर के यहाँ चला जाएगा और मेरा सिलेक्शन अगर गलत होगा तो हंसेंगे। ऐसा नहीं है। अगर हमारी कोई गलती है, शिकायत है, तो उसे सुनने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हम अपनी गलती सुनेंगे और फिर हम प्रयास करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। दूसरा गलती पेशेंट के तरफ से होता है, फ्रॉम पेशेंट एस्पेक्ट्स।
किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलिनम 1 mg की 2 खुराक दी और मैंने पैसे ले लिए 100 रुपये और प्लासिबो दे दिया। पेशेंट को अच्छा हुआ। पेशेंट सोचेगा कि 10 रुपया में दुकान में दवा मिलती है तो इनके पास 100 रुपया क्यों देने जाऊं, और 2 खुराक ये दवा खाने से इतनी फ़ायदा हुआ तो मैं पूरा लिक्विड क्यों ना पी लूँ या रोज़ 1-1 बूंद ले लूँ। तो डॉक्टर जानता है कि ट्यूबरकुलिनम अगर हमने दिया तो इसके बाद इस पेशेंट को क्या देना है, पोटेंसी चेंज करना है, दवा बंद करना है या दूसरी दवा देना है। लेकिन इसके कंटिन्यू यूज के बाद जो कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में होंगे इसके लिए जिम्मेवार पेशेंट होगा, न कि डॉक्टर। ये 2 कारणों से कुछ डॉक्टर दवा का नाम नहीं लिखते हैं या उसका सेकेंड नाम लिखते हैं या कोड वर्ड लिखते हैं। सो रिकॉर्डिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, फॉलोअप्स एंड व्हाइल रिव्यू द केस टू नो द सीक्वेंस एंड डिसअपियरेंस ऑफ द सिम्टम्स। फर्स्ट टाइम पेशेंट में कौन कौन सा सिम्टम्स था, कैसे कैसे आया था, और सेकेंड टाइम फॉलोअप के समय कौन सा सिम्टम्स किस डिग्री तक चेंज हुआ, किस में एग्रावेशन हुआ, कौन सा सिम्टम्स नो चेंज रहा, और क्या कोई नया सिम्टम्स भी आया है। फिजिशियन शुड ऑब्जर्व द पेशेंट from the time he enters in the clinic. Points to be noted: the personality of the patient. जब पेशेंट क्लिनिक में आता है उसके बाद पर्सनालिटी ऑफ द पेशेंट, उसकी पर्सनालिटी क्या है, कैसी है। मेंटल स्टेट: डिप्रेस्ड, शाई, सस्पिशियस, सेक्रेटिव, अफ्रेड। गेट मीन्स कैसे वो चल के आया। कंप्लेक्शन: डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और विजन, वो लंबी लंबी सांस तो नहीं ले रहा है, चश्मा पहना है या नहीं, या आंख ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहा है। ड्रेस स्टेटस: रिकॉर्ड एवरी सिम्टम्स बाय लीविंग सम स्पेस इन बिटवीन सो एज टू फील लेटर। ड्रेस स्टेटस: ड्रेस से मालूम होता है एक तो कि धर्म उसका क्या है, रिलीजन। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हम पता नहीं कर सकते कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। दूसरा, वो किस क्षेत्र से संबंधित है। अगर इंडिया में आप देखेंगे ड्रेस तो महाराष्ट्र में लेडीज साड़ी, काष्टी साड़ी पहनती है, वेस्ट बंगाल की साड़ी अलग होती है, राजस्थान का ड्रेस पहनावा अलग है, गुजरात में अलग है, फिर आप साउथ में केरल कर्नाटक में अलग मिलेगा, आसाम जोन में अलग मिलेंगे, नेपाल से रिलेटेड पार्ट में अलग ड्रेस कोड होंगे। सो इससे वो किस रीजन का है ये मालूम होता है। दूसरा, अगर कोई कहता है कि मैं इंजीनियर हूँ तो एक इंजीनियर की इनकम लगभग हर एक आदमी को मालूम है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो प्राइवेट में हो। लेकिन अगर उसके शर्ट के जितने बटन हैं उसमें एक बटन का कलर चेंज है तो हम समझ सकते हैं कि या तो ये झूठ बोल रहे हैं या कंजूस प्रकृति के हैं। इस 2 से कोई ना कोई हमें एक क्लू मिलेगा। सो बी केयरफुल ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। ड्रेस स्टेटस: A thorough examination, relative laboratory investigation or pathological findings, and may be a special test required in case suggested by physician. हर एक केस के अनुसार लैब फाइंडिंग अलग हो सकते हैं, सबों में एक नहीं होगा। टू गिव इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल डिजायर स्वीट, मिठाई अच्छी लगती है
हाउ स्ट्रॉन्ग इज द क्रेविंग? कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कमस्टांसेस व्हेन यू मस्ट नोटिस दिस क्रेविंग? सो मिठाई की क्रेविंग कितनी है? एक मिठाई खाए बगैर नींद नहीं पड़ती, मिल गया तो खा लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। तीसरा, सोचना नहीं, साल में 1-2 बार खा लेते हैं। सो इंडिकेट्स द क्रेविंग फॉर स्वीट और पार्टिकुलर फूड आइटम। क्वालिटी ऑफ द सिम्टम्स कैन बी डन बाय अंडरलाइंग with the help of 3 factors: clarity, intensity and spontaneously. These 3 points used for the quality of the case, quality of the symptoms in case. Number 1, no underlying symptoms which are lazy, doubtful. 1 underlying symptoms of great clarity and intensity. Number 3, 2 underlying symptoms of great clarity, moderate intensity. 3 underlying symptoms with the highest great intensity given entirely importance by the patient. जिस सिम्टम्स के बारे में पेशेंट बार बार कहे, उस सिम्टम्स पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, या उसके अंदर हम 3 अंडरलाइन मार्किंग करेंगे। बाद में हमें दिक्कत न हो कि पेशेंट किस सिम्टम्स पर कितना इम्पोर्टेंस दिया। फर्स्ट, इंटेरोगेट द पेशेंट देन द रिलेटिव्स। पहले पेशेंट से बात कर ले, उसके बाद उसके संबंधित या संबंधियों से हम बात करें, रिलेटिव से। कुछ केस में ऐसा देखा जाता है, पेशेंट बैठा हुआ है और उसके रिलेटिव बोल रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या रिश्तेदार हो। प्रेजेंट हिस्ट्री, फर्स्ट अलाउ द पेशेंट टू नरेट हिज इंटायर हिस्ट्री विदाउट इंटरप्शन फॉलोड बाय क्लैरिफिकेशन अबाउट। पहले पेशेंट जो कह रहा है उसे कहने देना चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, रुकावट नहीं होना चाहिए। उसके बाद पेशेंट जितना बोला, हर एक सिम्टम्स के बारे में जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है, जिससे ये वेरीफाई हो कि कौन सा सिम्टम्स पेशेंट के अनुसार सही है और किस सिम्टम्स की ज़रूरत हमारे लिए है। Symptoms contains different headings like location, in location, onset, sequence, duration, sensation, character, laterality, extension, radiation of pain with pathology. So which type of sensation patient explain? तो sensation clearly given by normal adult patient, not in patient of geriatric age group or pediatric age group or infant group. Modality, cause, aggravation and amelioration pertaining to the present complaint, in relation with time, temperature and weather, उसके शरीर का तापमान कितना रहता है और किस टेम्परेचर, किस क्लाइमेट या जलवायु में उसे परेशानी होती है या कमी और ज़्यादा होती है या दिक्कत होती है। बाथिंग, रेस्ट एंड मोशन, पोजीशन। पोजीशन मीन्स आप देखेंगे किसी को कुर्सी पर बैठते हुए तो एक सीधा बैठेगा, एक बैठेगा और हाथ दोनों तरफ कर देगा, एक बैठा रहेगा, पैर हिलाते रहेगा, किसी का दोनों पैर हिलता रहेगा। सो टर्म इज पोजीशन। बेड पर अगर वो सोता है तो लेफ्ट साइड, राइट साइड, सुपाइन या डोर्सल पोजीशन, किस पोजीशन में
उसे आराम लगता है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई मीन्स किसी सेंट, स्मेल, परफ्यूम्स या पोलन ग्रेन से उसे कोई समस्या है। ईटिंग, खाने का उसका आदत क्या है, कोई एक बार खाता है, कोई 4 बार खाता है। थर्स्ट, प्यास, कोई एक बार में 2 लीटर पानी पीता है, कोई घूट घूट पानी पीता है, कोई गर्म पानी पीता है, कोई ठंडा पीता है। सो टॉपिक इज थर्स्ट। स्लीप, नींद, किसी को 3 घंटे में भी नींद पूरी होती है और किसी को 6 घंटे में भी नींद पूरी नहीं होती है। स्लीप, सो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप वेरीज अकॉर्डिंग टू एज एंड ऑक्यूपेशन। मेंसेस इन फीमेल, अर्ली, लेट, इरेगुलर, स्वेट एंड अदर डिस्चार्जेस, masturbation and emotions. So these topic must be interrogated during the case taking. So location, sensation, modality and concomitant. Concomitant means ऐसा सिम्टम्स जो उस बीमारी से संबंधित नहीं हो लेकिन उसके साथ, उसके आगे या बाद में वो दिखाई देता है या मालूम होता है, महसूस होता है फीलिंग। स्ट्रेंज, रेयर एंड पिकुलियर सिम्टम्स विथ स्ट्रिक्ट टाइम रिलेशन विद द कंप्लेन, पास्ट हिस्ट्री विथ ट्रीटमेंट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, वैक्सीनेशन एंड पेशेंट रिएक्शन टू इट। सो कॉन्कोमिटेंट के बाद पास्ट हिस्ट्री विथ ट्रीटमेंट हिस्ट्री, जिस एज में, समय में पेशेंट आया उससे पहले उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, कोई बीमारी हुआ, बचपन का याद नहीं रहता, इसलिए पास्ट हिस्ट्री उसके पेरेंट्स बहुत अच्छा से दे सकते हैं जिनके साथ परवरिश हुआ है। सो बच्चों के केस में उसकी माँ सही जवाब दे सकती है। फैमिली हिस्ट्री जैसे थायरोटॉक्सिकोसिस, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ल्यूकोडर्मा, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा। वैक्सीनेशन एंड पेशेंट रिएक्शन टू इट, हिस्ट्री ऑफ इम्यूनाइजेशन और एनी कॉम्प्लिकेशंस अराइजेज आफ्टर वैक्सीनेशन। So these are also interrogated after the case. Physical general means those symptoms affect the patient as a whole, like thermal changes, skin, perspiration, sleep, appetite, thirst, desire, aversion, special senses, endocrine, circulatory, respiratory, menses, developmental, landmark, daily work routine, other. So these are the physical general which affects patient as a whole, not particular. Mental general, will, understanding, memory. किसी की मेमोरी इतनी शार्प होती है कि 30 साल पहले का भी याद रहता है, लेकिन दूसरे की मेमोरी ऐसी होगी कि 30 साल पहले का बात याद होगा लेकिन 3 दिन पहले का बात और सरकमस्टांस और इंसिडेंस याद नहीं होगा। कुछ ऐसे आदमी होंगे उनकी मेमोरी जो कभी कभी अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, जिसके साथ 10 साल तक रहे उसका भी नाम कभी कभी भूल जाते हैं। सो इन मेंटल जनरल, विल, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, फिजिकल एग्जामिनेशंस एंड इन्वेस्टिगेशंस। According to Dr. Pierre Smith, the more an allopath grows old, the more he is pessimist. The more the homeopath grows, the more he is
enthusiastic and optimistic. This is because the more experienced a homeopath become, better would be his case taking. जितना पुराना ज़्यादा दिन का प्रैक्टिशनर होगा उतनी अच्छी उसकी केस टेकिंग की स्टाइल होगी, कम से कम समय में अच्छे से अच्छे केस टेकिंग वो कर पाएंगे. डिफ़िकल्टी इन टेकिंग एंड ट्रीटिंग क्रोनिक केसेस. द क्रोनिक केस कैन बी क्लासिफाइड इनटू two types, pseudo chronic case and true chronic case. एग्जाम्पल ऑफ pseudo chronic case, अगर किसी लेडीज के पैर में दर्द होता है और पैदल चलने में दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो दो ऑप्शन है. ये अगर उसे मैके जानी हो तो बस स्टैंड से 3 किलोमीटर भी दूर है और गाड़ी नहीं मिल रही है तो वो पैदल चली जाएगी. लेकिन ससुराल अगर जाना है तो पैर इतना दर्द करेगा कि वो जा नहीं पाएगी बिना साधन के. तो एक ही लेडीज के दो कंडीशन. दिस इज इंडिकेशन ऑफ स्यूडो क्रोनिक केस. कोई बीमारी नहीं है लेकिन एक आदत में बन गई, जैसे नाक में अंगुली करना कंटिन्यूअस, किसी को बैठे रहना और पैर हिलाना, मूवमेंट इन लेग्स, और अदर एग्जाम्पल्स may be possible for pseudochronic case. Difficulties in treating chronic diseases are: number 1, those who have taken medicine for the present ailments and those who are still taking medicine for the present ailments. Chronic case ट्रीट करने में, उसका चिकित्सा या उपचार करने में जो समस्या आती है, एक तो ऐसे जो अपनी बीमारी के लिए मेडिसिन ले रहे हैं या ले करके आए हैं, तो एक तो डिजीज सिम्टम्स होगा, दूसरा ड्रग सिम्टम्स होगा. इन एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट अगर किसी को सेफ्रान 10 टैबलेट दे दिया गया, अब बुखार नहीं ठीक हुआ, तो सेफ्रान का टॉक्सिक इफेक्ट तो उसके पास होगा और बुखार का भी होगा. जब मेरे पास आएगा तो हम कैसे जानेंगे कि ये सेफ्रान का सिम्टम्स है या मेडिसिन का है? सो उस केस में अगर स्थिति ज़्यादा खराब या भयावह नहीं है तो उसे 2 से 3 दिन हम प्लासिबो पर रखेंगे, तब ड्रग डिजीज़ ग्रेजुअली कम हो जाएगा और उसके बाद डिजीज सिम्टम्स हमें मालूम होंगे. सो दिस इज द डिफिकल्टीज इन ट्रीटिंग क्रोनिक केस.